समादरणीय विद्वद्वृंद, आदरणीय साधक गण एवं प्रिय विद्यार्थियों, जय माई माँ, जय माई माँ, जय माई माँ, जय स्वामी जी महाराज की। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चैदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहरविरिञ्चेदभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं यहाँ एक विद्यार्थी, भारतीय शास्त्रीय परंपरा की एक विद्यार्थी के रूप में आई हूँ। माँ पीताम्बरा के प्रांगण में, पीताम्बरा पीठ में मैं उनसे आशीर्वाद और उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आई हूँ और आप सब विद्वद्वृंद से पुनः इस शाक्त परंपरा के बारे में सीखने आई हूँ। मैं कार्यक्रम के आयोजकों श्री पीताम्बरा पीठ एवं इंडस विश्वविद्यालय का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे आमंत्रित करके और ऐसे दिव्य क्षेत्र में ये आयोजन करने के लिए आयोजन में बुलाया है। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं आगे कश्मीर प्रदेश में जो एक गौरी स्तुति आदि शंकराचार्य को एस्क्राइब्ड है, उसमें से एक मेरा जो फेवरेट श्लोक है उसको भी देवी को समर्पित करती हूँ। यस्यः कुक्षौ लीनमखण्डं जगदण्डं भूयो भूयः प्रादुरभूत क्षतमेव भरत्रा सार्धं तां स्फटिकार्धौ विहरन्तीं गौरीम अम्बाम अम्बुरुहाक्षीम अहमीरे। जैसा पहले अनाउंस किया गया, मैं आज कश्मीर की शाक्त परंपरा को वहाँ के ही लिखित देवी महात्म्यों और देवी रहस्य नामक ग्रंथों के द्वारा एक बार देखने की कोशिश करूँगी, आप सबके सामने प्रस्तुत करने। बहुत ही मेरा हम्बल एक प्रयत्न है ये, जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। Kashmir has been the land of learning, the abode of goddess Sharada Devi from time immemorial. Along with its natural beauty and abundance of divinity, the place has been blessed with seers, sadhakas, mendicants, and intellects, who not only propagated different streams of philosophy and spirituality of Hinduism, but also became instruments of grace that has and continue to illuminate the paths of seekers and sadhakas even today. The place is revered as one of the 18 Shaktipeethas by Adi Shankara in his famous stotra, Kashmire tu Saraswati Ashtadash Shaktipeethani. The sacred land served not only as a fountainhead of all the eminent 14 Vidyasthanas, as states Sri Harsha in his remarkable work Nashadiya Charitam, Kashmireir Mahite Chaturdashitayim Vidyam Vidvadbhihi, but also has been a caring cradle and a major center of Hinduism and its various schools of thought such as Vishnuism, Shaivism, and Shaktism. The place gained reverence as sacred land par excellence, as it is dotted with innumerable holy places, both Swayambhu and man-made. This is substantiated at various places in the Sthala Purana of Kashmir, namely the Nilmat Puran. The Sthala Purana of Kashmir. Kashmir Mandalam Punyam Sarvatirtham Arindam Tatra Nagaha Hridaha Punyastatra Punyashilochayaha Tatra Nadyas Tatha Punyaha Punyani Api Saramsi Cha Devalayaha Supunyascha Tesham Chaiva Tathashramaha. This is further endorsed by Kalhan in Rajtarangini as Tilancho Apinayatrasti Prathivyas Tirthe Bahishkrita hai. Rajtarangini Tarang 1, Shlok 38.
The popularity of sacred tirthas and intellectual traditions of Kashmir can further be noticed in the accounts of Chinese travelers, medieval travelers, and the modern travelers who happen to come to India and especially to Kashmir. And I would like to quote one among them, that is Abul Fazl, who in his Ain Akbari writes, quote, "The whole country, Kashmir, is regarded as holy ground by the sages." So we have come down at least to 16th century, wherein it was still a holy land, and the Shakta tradition and other tradition, along with other traditions, was very much prevalent in the country, in the Kashmir. With this brief background, an attempt is being made to study the manifestation of Shakta tradition of Kashmir through the Devi Mahatmyas and the Devi Rahasya. जैसा मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर के जो हमारे जो भी ग्रंथ मिलते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक ग्रंथ हो, चाहे वो एसोटेरिक ग्रंथ हो, चाहे रहस्यात्मक ग्रंथ हो या देवी महात्म्य हो, इन सब में देवी की आराधना या देवी के कितने तीर्थ कश्मीर में है, ये सब मेंशन्ड है। और उसके अलावा कश्मीर का जो इतिहास है, 12वीं शताब्दी का राजतरंगिनी जो कलहनकृत है, उसमें भी सारी देवियों का और उस समय की पूजा पद्धति, सप्तमातृकाओं का वर्णन, ये सब दिया हुआ है। The legend of Daksha Yajna is very much known to all of us, and it's believed that consequent upon the destruction of the Yajna, the right hand of goddess Sati fell here at Sharda Peeth. One may not miss the metaphorical meaning of the right hand's association with writing, and this is the reason the lipi, the script, along with the land, is called Sharada. The valley also houses the shrines of almost all the goddesses, namely Maharagi, Sharika, Bhadrakali, Mahakali, Mahatripura Sundari, Bala, Jwala, Jeshtha, Shailaputri, etc., along with the vast corpus of esoteric literature, stotras, and mahatmyas dedicated almost to each one of them separately. This shows that the place had a rich and vibrant tradition, vibrant Shakta tradition, that continues even till date in the Kashmiri Hindu society. The Devi Mahatmyas belong to the Bringi Samhita, the or Shri Samhita, the Sthala Purana of Kashmir. Reckoned among us the traditional sources for describing the Tirthas of Kashmir, a peculiarity associated with this genre of Puranic literature. These Mahatmyas are replete with the vivid descriptions of numerous Tirthas, also such as sacred ponds, rivers, auspicious utsavas, parvas, etc. The Mahatmyas are a dialogue, which we all know, between Shri Bhairavi and Shri Bhairava, wherein Shri Bhairavi inquires about the significance of these sacred abodes for the welfare of the people, Lokanugraha Kamya, and Shri Bhairava responds to her queries by narrating the associated stories regarding the legendary origin, significance, observances like bathing, worship, charity, meditation, jap, tap, home, and important dates of festivals, swadhyay, etc., practiced in the honor of these goddesses. These Mahatmyas project an assertive presence of the goddesses present in benevolent forms to bestow wisdom and knowledge, grace and liberation, peace and prosperity to her devotees. Although there are several Mahatmyas dedicated to the above mentioned goddesses, but we may delineate only two of them, namely Maharagi and Sharika Mahatmya, to understand the manifestation of Shakta tradition of Kashmir. And I also have to abide by the timeline, so otherwise I have a lot of material which will take कम से आज अगर मैं प्रारंभ करूंगी कश्मीर के बारे में बताना तो बहुत समय लगेगा, पर मैं सिर्फ दो महात्म्यों की बात करूंगी और थोड़ा सा हम देवी रहस्य में देखते हैं फिर शाक्त परंपरा का किस तरह से उसमें दीक्षा और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में उल्लेख है। रागी महात्म्य आप में से जो मेरे यहाँ के सारे भाई बहनें कश्मीर गए होंगे तो आप लोगों ने ज़रूर क्षीर भवानी
देवी के दर्शन किए होंगे, वही महारागी भगवती हैं और जिनके महात्म्य के बारे में थोड़ा सा मैं आगे बता रही हूँ। Shri Maharagi Mahatmya is the first Devi Mahatmya as described in the Bringi Samhita, consisting of two patalas, namely Tulmula Varnanam and Shri Ragi Pradurbhavaha. सो ये तूलमूल जो जगह है आज की डेट में, आज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी उस जगह को जो गांदरबल विलेज के पास है उसको तुलमूल ही बोलते हैं, महारागी भगवती का क्षेत्र जो है। और इसका वर्णन ये जो महात्म्य है इसमें दिया गया है, जिससे ये भी पता चलता है कि ये महात्म्य कुछ नहीं तो 19वीं शताब्दी में लिखा गया होगा, क्योंकि जो महारागी से लेकर के तुलमूल स्थान का नाम पड़ा वो इस महात्म्य में बिल्कुल उल्लिखित है। द महात्म्य इज़ अ रेगुलर डायलॉग बिटवीन श्री भैरवी एंड श्री भैरवा, वेयरइन Shri Bhairavi asks him the questions regarding the manifestation of goddess Tripura, also known as Dvitiya, and Taruna, her essence, as she was propitiated by Ravana. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। In the northeastern quarter of Lanka, in a pond replete with countless snakes and who looks like Tamasi. Bhairavi further asks Bhairava to reveal the real nature of goddess for the benefit of humanity, as to how and by whom the goddess was carried and in what form was she established in Kashmir, and whether she is Tamasi, Rajasi or Satviki. So, ईशान कोने लंकाया नागे अनंते प्रतिष्ठिता तामसी बहिरादिष्टा साका वै वद सत्तम तामसी राजसी वापि सात्विकी वा महेश्वर सैव श्रुता मया देव पुण्ये काश्मीर मंडले. The narrative is interlinked and hence a brief gist is reproduced here. So it goes as a child, Ravan, the son of Pulastya, cried to have a golden city of Lanka, and through the blessings of Shiva, he obtained it. He propitiated goddess Adishakti, who, pleased by his penance, established herself in the northeastern quarter of Lanka as a Mahasankarshini Jwala. So, अभी मेरे पहले वक्ता ने भी इन देवी का जिक्र किया है. तो एज ही सेड कि हमें आगे भी सबको साधकों को मिलकर या जो भी शाक्त परंपरा में इंटरेस्टेड स्कॉलर्स है सबको मिलकर इसके बारे में और बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है पिछले कुछ दशकों से शाक्त परंपरा के ऊपर ज़्यादा बात हुई नहीं है. सो मे बी वी कैन एक्सप्लोर एंड कनेक्ट द डॉट्स विच आर स्प्रेड इन द होल ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट. So coming back to this, Narada Ravana establishes Mahasankarshini Jwala. The Devi goes there as Mahasankarshini Jwala with huge furrowing flame, surrounded by a pond of Ananta, infested by numerous snakes in her Shama or Tamasi form. However, owing to Ravana's unwholesome acts and omissions, she decided to proceed to Kashmir, which was the seat of Ramaraj. Thus says the Mahatmya. Hanuman, at the behest of Shri Ram, carried her along with all the snake-filled pond, and installed her at the ever beautiful land, as soft as that of reason and soft and reasonable rate as the cotton, Tulvat Tulyan Yatra, named as Tulmula. There now goddess Tripura is known as Maharagi, who became calm and composed, and even her dietary preference changed from extreme non-vegetarian to pure vegetarian. She developed liking for milk, candy and clarified butter. That's why Kshir Bhavani Bhagavati also. On every Purnima, that is the full moon day, of the bright fortnight, Shri Ram, Sita, along with Lakshman, visit this Tirtha as prescribed in the Mahatmya. On every 8th and 9th bright half of month, Mandodari and Vibhishan visit her respectively. Mighty Hanuman is always there in her attendance.
Kashmiri Hindus observe fast on the Shukla Paksha Ashtami of each month in honor of Maharagi Bhagavati to seek her blessings, her anugraha for the whole humanity. अस्तु। हम आगे बढ़ते हैं। ये श्री शारिका महात्म्य comprises 6 patalas in which Shri Bhairavi asks Shri Bhairava about the glory of Sharika Giri, because it's a small hillock on which Sharika Devi is there. Shri Bhairavi uvacha aduna shrotum ichchami Sharika Girim uttamam yat shrutva muchyate jantum janmakoti bhavair agahe. Shri Bhairava uvacha शृणु देवी प्रवक्ष्यामि शारिका गिरिम उत्तमं यत् श्रुत्वा मुच्यते जन्तुः महापातककोटिभिः प्रद्युम्नाख्याय महापीठं शृणु वक्ष्यामि पार्वती सर्वविघ्नापहं सद्यः कलौ सिद्धिप्रदायकम्. So she asks about the Sharika Pradurva, Pradyumna Peeth Mahima, Pradyumna Peeth Sarvashila Devi Rupa, Shri Chakra Mahatmyam evam Pradakshina Mahima. In response, Shri Bhairava narrates the following stories regarding the glory of शारिका गिरी. तो मुझे लग रहा है मेरे पास समय 10 ही मिनट है, तो शारिका महात्म्य की कहानी फिर मैं आपको कभी और सुनाऊंगी जब महात्म्य में यही सारे प्रश्न पूछने पर इसमें बहुत एक जो हमारे लिए आज, क्योंकि हम शाक्त परंपरा की बात कर रहे हैं, तो इसमें शॉर्ट में मैं ये बताऊंगी, जो मैंने लिखा है उसको छोड़ते हैं, कि बकासुर नामक एक राक्षस था जिसने बहुत उस क्षेत्र में लोगों को परेशान किया था. तो जैसे कि सारे पुराणों में और महात्म्यों में कहानी है कि फिर देवी बाकी सारे देवता परम शिव के पास पहुंचते हैं और परम शिव उनको बोलते हैं कि ठीक है, ये जो बकासुर है ये खुद ही उस अपने रंध्र में चला जाएगा और देवी त्वरिता के रूप में आ जाएगी और वो अपनी शक्ति को सूचित करते हैं कि आप तुरंत चले जाओ और अपना हमारे भक्तों का जो वहाँ पर उनके ऊपर जो अन्याय कर रहे हैं राक्षस, उनसे उनको मुक्ति दिलवा दो. तो देवी वहाँ चली जाती हैं सारिका के रूप में, सारिका पक्षी, और जिसको अंग्रेज़ी में शायद मैना भी बोलते हैं. तो सारिका से ही शारिका देवी हो गई. तो उन्होंने वो अपनी चोंच में सारिका रूप लेकर के चोंच में उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर ले लिया, जो उन्होंने वो जो नीचे पृथ्वी के नीचे असुर था बकासुर, वो उन्होंने चोंच से वहाँ गिरा दिया और वो एक महान शिला बन गई. और वो बकासुर नीचे से उसको अपना हाथ मारता गया कि हटाऊं और मेरा दम घुट रहा है, पर जब देवी वहाँ पर है तो वो कहाँ निकल पाएगा. और फिर सारे ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व वहाँ आ जाते हैं, देवी को प्रार्थना करते हैं और देवी वहीं स्थापित हो जाती है शिला रूप में. इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि आप सब अगर गए हैं तो आप हारी पर्वत में देखेंगे कि वहाँ पे एक महान शिला के रूप में हम श्री चक्रेश्वरी, क्योंकि उनके हाथ में है तो श्री चक्रेश्वरी रूप के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पर. और ऐसा माना जाता है कि वो एक सिद्धपीठ है, एक शक्तिपीठ है. ये महात्म्य ये भी कहता है जहाँ यक्षिणी, महारौद्री, शंखिनी, तारा, ज्वालामुखी, महारागी, ये सारे देवी देवता वहाँ पर महान शारिका देवी के आसपास उन सब की स्थापना है. फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने बहुत देर से अपने घर में रियलाइज़ की, विच आई वॉन्ट टू शेयर हेयर, विच इज़ कि यहाँ श्री भैरव से पूछती है कि शिला रूप में यदि कोई नहीं जा पाता है तीर्थ में यहाँ श्री चक्रेश्वरी के दर्शन करने के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए. तो श्री भैरव कहते हैं श्री शारिका हेक शिला हि वामा वै द्विशिला टंकधारिणी एक शिला तारा चैव चतुःशिला विनायकी द्विशिला तो शंखिनी च चतुःशिला महापद्मावती अत्र प्रोक्ता पंचशिला. इसके पश्चात यदि किसी के घर जो जैसा मैंने पहले बताया कि नहीं जा सकता है, वो शालिग्राम शिला पर श्री चक्र स्थापित करके घर में पूजा कर लें. वो इस तीर्थ के जाने के महत्व को मतलब के बराबर है. तो आप सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे ये सुन कर के कि
जो आज मेरे साथ मेरे पतिदेव भी है। ऐसा पहली बार हुआ है, मैं बहुत सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में गई हूँ, पर आज पहली बार ऐसा हुआ, माई की कृपा है कि वो भी मेरे साथ आए हैं। तो ये इनके जो दादाजी थे वो स्वामी लक्ष्मण जी के जो भी कार्य काज होता था, धार्मिक अनुष्ठान वो करते थे। स्वर्गीय स्मृति शेष पंडित श्यामलाल जत्तू जी, हमारे यहाँ एक अवधारणा है कि उन्होंने ऐसे ही शालिग्राम शिला पर श्री चक्र की स्थापना की है, जिनको तब से, और अभी मेरे ससुर जी हैं घर पे श्री नंदलाल जी, वो उसको पूजा करते रहे और उन्होंने अब हमें वो आगे बढ़ाई है पूजा करने के लिए। तो ये एक जीवंत और प्रत्यक्ष मैं आपके सामने रख रही हूँ कि कैसे जो महात्म्यों में लिखा गया है, जो पुराणों में लिखा गया है, वो कुछ ऐसे कपोल कल्पना जैसे कि बहुत स्कॉलर्स या ऐसी जगहों पर चर्चा होती है, पर ये एक बिल्कुल और स्वस्तिक मुझे कल पूछ रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारे यहाँ नवरात्रों में जैसे पूजा होती है तो उसमें प्रॉपर एक अनुष्ठान होता है। और मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके ऊपर हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, और स्पेशली कश्मीर शैव दर्शन को देख सकते हैं और कैसे शाक्त परंपरा उसमें से ही प्रस्फुटित हो गई है, या वाइसी वर्सा हम इसको अलग अलग नहीं मानते हैं। इसी महात्म्य के अंत में महादेवी का श्री चक्रेश्वरी का बीज मंत्र भी दिया गया है, जो इस प्रकार है, जैसा कि मेरे पहले वक्ता ने बताया कि यहाँ पर सब लोग साधक है ही, तो मैं भी इसका उच्चारण कर ही सकती हूँ लोक हित के लिए। ओम ह्रीं श्रीं हां शां शारिकां देवीं दुर्गति नाशिनीं प्रद्युम्न पीठ निलयां भक्ताभयवर प्रदाम। तो अब ये हमने देखा महात्म्यों की धारणा। इसके पश्चात मैं एक ग्रंथ, हालांकि मैं वो भी लेकर के आई हूँ साथ में, मैं दिखाना चाह रही थी आप सबको वो, उस ग्रंथ का एडिशन आदरणीय श्री स्मृति शेष वो भी है, हरभट्ट शास्त्री जी ने किया है, देवी रहस्य। तो मैं उस परिवार से हूँ जहाँ मेरे पूजनीय हरभट्ट शास्त्री जी मेरे पिताजी के भी चाचा जी थे। तो जिन्होंने कश्मीर सीरीज़ ऑफ टेक्स्ट्स अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उन्होंने पंचस्तवी का भी एडिशन किया है। तो ये पूजनीय हरभट्ट शास्त्री जी का एडिशन है और रामचंद्र काक जी का एडिशन है, जिसमें ये भी उल्लिखित है कि उन्होंने एक जो मातृका है, एक मैन्युस्क्रिप्ट है, वो श्री श्यामलाल जी के यहाँ, श्यामलाल जत्तू जी के घर से लिया था। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया है। और मिश्र जी के साथ मैंने कुछ दिन पहले बात की थी और देवी रहस्य की चर्चा की थी। और इस ग्रंथ में वर्णित शाक्त गुरु परंपरा, शाक्त गुरु दीक्षा, इस सब का वर्णन है कि गुरु कैसा होना चाहिए, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, शिष्य कैसे होना चाहिए और दीक्षा पद्धति कैसी है। जैसा कि हम सबको विदित है, देवी रहस्य रुद्रयामल तंत्र का ही एक चैप्टर माना जाता है। उसमें भी भैरवी देवी, भैरव और देवी के रूप में के बीच में एक डायलॉग है। इसके 3 पार्ट्स हैं, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध और परिशिष्ट। और इसमें बहुत सारे पटल है, पंचांग पूजा के बारे में वर्णन है, जिसमें पटल, कवच, पद्धति, सहस्त्र नाम स्तोत्र और पंचायतन पूजा का भी पूरा वर्णन है। हमारे लिए जो यहाँ उद्धार कोश भी है और उसके अलावा देवियों के पंचांग पूजा का भी पूरा विदित वर्णन है, जैसे ज्वालामुखी, शारिका, महारागी और बाला, जो कि कश्मीरी हिंदूज़ के लिए या कश्मीरी पंडितों के लिए अभी भी कुल देवियाँ हैं। हमारे लिए जो यहाँ पर सबसे उत्तम चीज़ मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि जो पहला पटल है देवी रहस्य के इसका पहले चैप्टर का, वो है शक्ति दीक्षा निरूपणम, जिसपे दीक्षा विधि के बारे में, जैसे मैंने पहले कहा, बताया गया है। श्री देवी उवाच भगवन् परमेशान साधकानां हितेच्छया कदा दीक्षा पराग्राह्या साधकैस्तद्वदस्व मे। श्री भैरव उवाच सुदिने शुभ नक्षत्रे संक्रांतावयवद्वये नवरात्रिदिने पित्रोः श्राद्धे स्वजने वासरे नववर्षदिने देवी चंद्रसूर्योपरागके तिष्ये स्वजन्म नक्षत्रे दीक्षां ददाति विचक्षणः। तो ये सारे मुहूर्त बताए गए हैं कि इस समय हम दीक्षा दे सकते हैं।
अब गुरु और शिष्य की क्वालिटीज़ क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, उसके लिए श्री भैरव कहते हैं गुरुम गुरुम कुलीनम तंत्रज्ञम सर्वांगहि सुमनोहरम निरामयम च निर्लोभम निशेष आगम पारंगतम ग्रहणीयात् परया भक्त्या साधको येन जायते गुरुश्च शिष्यम रम्यांगम कुलीनम गर्भदीक्षितम। ये मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग है और हम लोगों को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। फर्दर श्री देवी रिक्वेस्ट श्री भैरव टू एडवाइज दैट इफ़ द शिष्य वोंट फाइंड अ सूटेबल गुरु, अगर एक शिष्य को, जैसा कि कल आपने बताया मिश्र जी, तो हमारी टेक्स्ट देवी रहस्य कहता है अदीक्षित उपाध्याय विहीन शक्ति भक्तिमान गुरोरभावे देवेशी पुस्तकम गुरुमाचरेत। तो आप पुस्तक को, जो विद्या है, जो शास्त्र है, उनको ही गुरु की एब्सेंस में आप ले सकते हैं जब तक आपको अच्छा गुरु मिलेगा। The chapter further describes the complete methodology Diksha Nirupanam for Guru and Shishya, and if they find each other compatible and suitable। ये भी नहीं कि जो भी गुरु मिला या जो भी शिष्य मिला, दोनों एक दूसरे की पात्रता को जान करके फिर दीक्षा ले लें। तो ये जो छोटा सा वर्णन मैं यहाँ पर कर पाई, मुझे लगता है आप सबके सामने मैंने शाक्त ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर के बारे में जो बात बताई, मुझे लगता है थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें आई होगी। इसके अतिरिक्त यदि हमारे पास समय हो तो हम लोग जो कश्मीर का एक भवानी सहस्त्र नाम है, पंचस्तवी है, इंद्राक्षी स्तोत्र है, राजतरंगिनी में सप्तमातृकाओं का वर्णन है, नीलमत पुराण में भी देवी उपासना के बारे में बताया गया है, और वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा एक बात मैं और जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई शादी ब्याह या यज्ञोपवीत की ऐसी शुभ कार्य होता है, उससे पहले हमारे यहाँ एक, जो कि मुझे भी बहुत दिन तक मालूम नहीं था, अब क्योंकि आप देखते हो, पुस्तक पढ़ते हो, तो आपको समझ में आता है कि उसमें एक देवगुण करके हम लोगों के यहाँ एक पूजा होती है। तो बहुत आजकल किसी को कुछ मालूम भी नहीं है, तो सब एक दूसरे से पूछते हैं इसका मतलब क्या है। तो अभी पता चला है कि उसमें उसका भी जो अपना एक उसकी अपनी एक विधि है, उसकी अपनी पुस्तक है, उसमें सप्तमातृकाओं का पूजन होता है। तो जो भी शुभ कार्य आप करते हैं, पहले आप सप्तमातृकाओं से आशीर्वाद लेते हैं, और प्रॉपर एक पूरा एक अनुष्ठान होता है उसके लिए, जो कि मुझे लगता है पूरे भारत में मैंने और कहीं किसी आपके यहाँ होता होगा, पर मैंने जी 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 तो पर ये अभी भी हमारे यहाँ, चाहे कश्मीर की जो भी स्थिति हो गई है और कश्मीरी कहाँ देश विदेश में है, पर ये वाला जो है शुभ कार्य से पहले ये देवगुण वाला कार्यक्रम अनुष्ठान ज़रूर होता है। इससे पहले आज सुबह प्रोफेसर डेविड फ्रॉली ने जैसे, और मेरे भाई साहब ने जो नेपाल से आए हैं, इन्होंने राका देवी और सिनेवाली देवी, इनकी भी बात की है। तो ये देवियाँ भी हमारे जो नित्य कर्म पूजा है या जो प्रसाद हम देवी को चढ़ाते हैं, उनमें जहाँ देवियों के नाम आते हैं उसमें राका देवी और सिनेवाली देवी, और इसके अतिरिक्त और भी वेदों में जो वर्णित देवियाँ हैं उनके नाम भी आते हैं। तो इसके अतिरिक्त कुल देवियाँ, इष्ट देवियाँ, ग्राम देवियाँ हमारी नित्य और नैमित्तिक पूजा में और अनुष्ठानों में आती हैं, और उनका अपना प्रॉपर एक भाग हम दे देते हैं। और हमारा जो पंचांग है कश्मीर से, जो विजयेश्वर पंचांग निकलता है, उसमें देवियों की एक जो प्रॉपर उनके जन्म तिथि है या उनके जो और ऐसे अनुष्ठान हैं, उनके बारे में डेट्स दिए जाते हैं। और वो आज के समाज में ये सब मैं आप सबके सामने रखना चाह रही थी कि आज भी देवियों की पूजा अनुष्ठान, जैसे रागी देवी का ज्येष्ठ अष्टमी, आप मिश्र जी को तो मालूम ही है, तो वो ये जो क्षीर भवानी की बात कहने की, ऐसे ही जो चक्रेश्वरी देवी है उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है, व्रत होता है, उनके हिसाब से खान पान बनते हैं। तो ये अभी भी पूरे कश्मीरी समाज में प्रिवेलेंट है। देवी रहस्य में ही वर्णित 2 ध्यान श्लोकों से जो श्री शारिका भगवती और श्री महारागी भगवती के है, उनसे अपना कथन पूरा करती हूँ। श्री शारिका ध्यान श्लोकम।
श्री शंख चक्र मुसलाम्बुज युग्म हस्तां नागेंद्रहार वलयांकित कंठमालां सिंदूर कुंकुम सहस्र मरीच दीप्तं श्री शारिकां त्रिनयनां हृदये स्मरामि। श्री राज्ञी ध्यान श्लोकम। शीतां शुबालार्क कृशानुनेत्रां चतुर्भुजां एनत्व अगासनस्थां शंखाब्जशूल असिधरां महेशीं रागीं भजेहं तुहिनाद्र रूपां। और मुझे यहाँ ये अवसर देने के लिए एक बार और इंडस यूनिवर्सिटी का, श्री पीताम्बरा पीठ के समस्त न्यासीगण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।